how are you feeling this phase of this sudden fame, recognition, love? Actually, there's more love. Yeah. Also, you're giving interviews, you're talking Yeah. to people. How are you actually feeling? Just after the release of Panchayat, I think इतनी सारी चीज़ें हो रही है ना, so it's very difficult me to process कि कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है. Like every day is like busy with interviews, तो सोचने का भी टाइम कम मिलता है कि क्या हो रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है. बट जो प्यार मिल रहा है, और स्पेशली जो आजू बाजू के जो लोग हैं जो मेरे लाइक पर्सनल लाइफ में है, वो जब मेरी सक्सेस से वो खुश हो रहे हैं, वो खुशी देखकर मुझे थोड़ा सा बेटर फील होता है. क्योंकि बॉम्बे जैसे शहर में आपको अच्छे दोस्त मिल पाना बहुत डिफिकल्ट है. Correct. या आई एम trying to enjoy this thing, enjoy this phase. That's amazing. As I said, इस शो का नाम है The Good Girls Show, Yeah. and we want to know what kind of a girl Pooja was growing up. Okay, so we'll get to that conversation. Start करते हैं with a segment जिसका Yeah. नाम है The Good Girls Report Card. Okay. पहला segment on this report card is called I've been called. तो यहाँ I've पे been कुछ called. words हैं, you have to हाँ. tick the words जो लोगों ने use किए हैं आपके लिए. इसमें से कोई सा भी आई डोंट थिंक सो मेरे लिए यूज किया है. What? या आई हैव नॉट बीन लाउड एंड बोल्ड एंड sarcastic एंड talkative. आई वाज अ वेरी क्वाइट गर्ल. Girls girl, yeah, that is one thing कि I was brought up in a girls environment. I have like sisters. और फिर जब मेरी schooling भी हुई थी तो it was a girls school. अच्छा. So yeah, this is the only thing. Girls. Dramatic, no, never. Sensitive, yes, very sensitive. Bossy, no. Too much, no. Rebel, no. Opinionated, yes. Brave, yeah, you can say so. Yeah, it depends. You've not been called, let's say, too much. No, never. It's amazing. I think you're the first girl who sat Yeah. on this couch and said that I've not been called too Too much. much, yeah. Why do you think that is? Because I have always been like in a shell, always been shy and not very like outgoing, and also I've been raised in that particular way. अगर थोड़ी बहुत मैं गड़बड़ करती थी, मेरे को अच्छी खासी मार पिटती थी. So I think these are the reasons, like I've never been called like too much. अब ये है कि इंडस्ट्री में आके sometimes I have started speaking for myself. तो उसमें you can say I am little dramatic or like rebel and bold, like now, like but earlier I never used to be such So you things. have been a good girl. Yeah, I've always been a good girl. Yes. Okay, now the other segment, the other section on this is feedback and remarks. Yeah. So this is about like what kind of a student were you? ठीक है, पहला section इस पर है a remark that was. बचपन के रिपोर्ट कार्ड याद हैं? उस पर क्या रिमार्क्स हुआ करते थे? And that तो जब हम अगर if you like standing in like top 5, तो जो हमारी प्रिंसिपल मैम होती थी तो वो साइन सिग्नेचर के साथ साथ वेल डन भी लिखती थी, वेरी गुड, वेल डन. तो वो रिमार्क्स मुझे याद है. उसके अलावा तो ऐसे कुछ मुझे याद नहीं है. अच्छे ही like positive remarks ही मिलते थे because I was a good student. Yes. Till 10th class. After अच्छा. 10th, it was like a complete downfall. But till 10th, I was a good student, above average student. ये Yeah. 10th के बाद थोड़ा सा सडनली Yeah. आता है डाउनफॉल, Yeah, स्पेशली yeah, 11 में. देन yeah. 12 आप फिर से अपने आप को थोड़ा संभालने लग जाते नहीं नहीं, मेरा तो 12th भी नहीं संभला. Did you have Yeah. maths? Yeah, I had maths. And वो trigonometry मेरे दिमाग से ऊपर जाती थी. So yeah. A remark that you wished for. Was there something that you wished your teachers talked about you? ऐसा कुछ था कि यार ये चीज मुझे कभी किसी ने कही नहीं, ये कह देते या ये मेरे लिए लिख देते तो अच्छा होता. मुझे ऐसा लगता है कि लिखना तो नहीं, बट आई रियली वांटेड टू बी, वो जो एनुअल फंक्शन होता है, तो एनुअल फंक्शंस का मुझे पार्ट हमेशा से होना था. बट क्लास 1 से क्लास 12 तक मैं एक भी एनुअल फंक्शन में नहीं रही हूँ. क्यों? आई डोंट नो, जो बाकी स्टूडेंट्स थे उनको शायद मौका मिला, मुझे नहीं मिला था. तो दैट्स द ओनली थिंग. बट आई जेन्युइनली लव माई स्कूल. ऐसा मुझे कोई कंप्लेन नहीं है. लेकिन दिस इज वन थिंग दैट कि हाँ, मुझे उस टाइम पे स्टेज पे होना चाहिए था. So you grew up and you were born and raised in Jabalpur. Yeah. है ना? Yeah. मुझे बताओ कि गर्लहुड कैसा था, बचपन कैसा था? बचपन मेरा बहुत सीधा साधा था. सिंस आई हैड माई सिस्टर्स हु वर लाइक वेरी एल्डर टू मी, तो कभी मैंने ऐसा खेला नहीं है ज़्यादा लाइफ में. मेरे दोस्त रहते थे, 3-4 दोस्त रहते थे जो कॉलोनी में रहते थे. तो हम बाहर जाते थे, एक टाइम फिक्स होता था तो वापस बुला लिया जाता था. और मम्मी का ये था कि तुम
दूसरी जगह नहीं जाओ, जो बाकी के दोस्त हैं उनको तुम यहाँ पे बुला लो, यहाँ पे खेलो। तो कॉलोनी में भी हमें दूर बिल्डिंग्स में नहीं जाने दिया जाता था। आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट शी यूज्ड टू कम फ्रॉम। वो एक सिक्योरिटी के सेंस से वो Safety. रहता है, सेफ्टी के सेंस से वो रहता था। सो मैंने ज़्यादा खेला नहीं है, तो उस चीज़ का मुझे मलाल है। और सिंस मैंने ज़्यादा खेला नहीं है तो मैं बदमाश भी नहीं रही हूँ, मैं बहुत सीधी सादी रही हूँ। सो मैं चाहती हूँ कि मैं बदमाश होना चाहती हूँ लिटरली। अब मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं बहुत मस्ती करूँ, बहुत बदमाश रहूँ, प्रैंक्स करूँ। तो I want to live those things which I missed during my childhood. So I've been a good girl, but I want to be a bad girl now. Yes, Yeah. absolutely. All of us Yeah. eventually. But tell me, when did you realize this? कब इस बात का एहसास हुआ कि यार I am done being too good. Now I want to be bad, or actually let me put it this way, I want to be myself. इस बात का एहसास कब हुआ? आई थिंक बॉम्बे आने के बाद और विथ टाइम के हिसाब से वो रियलाइजेशन हुआ। और जब ऐसे मुझे फ्रेंड्स मिले, सर्कल मिला वेर आई कुड बी माई सेल्फ, और वो एकदम से सडन नहीं होता है, वो धीरे धीरे यू नो आप ओपन अप होते हो और फिर यू रियलाइज कि यार ये करने में कितना मज़ा आ रहा है। सो राइट नाउ द सर्कल दैट आई हैव, बहुत वो दोस्त लोग नहीं होते वो जो हुड़दंग मचाते रहते हैं, तो उनके साथ कभी कभी आप जस्ट इन्वॉल्व हो जाते हो, तो वो मुझे बड़ा इन्जॉयमेंट जैसा फील होता है। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये सही चीज़ें मैंने बचपन में नहीं की है, और मतलब मस्ती के ही सेंस में। पर क्यों ऐसा लगता है, like why were you not able to do those things? What do you think is the reason? क्या आसपास ऐसा था that because it's there, right? Yeah, Like yeah, we, yeah. and especially for girls, society loves quiet girls. Yeah, absolutely. Society loves good girls. Absolutely. So हाँ। why do you think that was? वो इतनी ज़्यादा वो reservation क्यों आ गई? क्योंकि पहला तो डेफिनेशन ही वही होती थी कि मतलब इफ़ यू आर क्वाइट, इफ़ यू आर शाय, इफ़ यू रिस्पेक्ट एल्डर्स, विच इज़ स्टिल अ गुड थिंग, बट इफ़ यू आर नॉट लाउड, तो आप एक गुड गर्ल होते हो। तो मुझे हमेशा से था कि नहीं नहीं यार, गुड गर्ल, कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, ये मिलेंगे। सो मैं हमेशा से उस उस ब्रैकेट में फिट इन होना चाहती थी कि सब मेरी तारीफ़ करें, मैं गुड गर्ल रहूँ। तो इसलिए मैंने कभी वो कोशिश भी नहीं की कि मतलब मैं रिवोल्ट करूँ या Rebel करो। रिबेल करूँ किसी भी चीज़ के लिए। तो वो साइकोलॉजिकल है कि मतलब जस्ट लोग आपको गुड गर्ल बोलें तो आप उस ब्रैकेट में फिट इन होना चाहते हो। This is so true. What you've said is actually so true. People, हम फिर people pleasers बन जाते हैं. You know, this is how people pleasing Yeah, comes in us कि validation जिसको बोलते Validation, हैं, हमें correct. validation चाहिए होता है. Yeah. पर how was your bond like with your parents? मम्मी के साथ, पापा के साथ growing बहुत up bond अच्छा, कैसा था? बहुत अच्छा। आई थिंक मुझे ना, लाइक अमंग ऑल माई सिस्टर्स आई एम द लकीस्ट वन, क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें मिली हैं, लाइक राइट फ्रॉम एजुकेशन और बाकी एफर्ट्स, जो बाकियों को मतलब लाइक they've been raised nicely, no doubt in that, बट मुझे ज़्यादा सिंस आई वॉज द यंगेस्ट, तो मेरे लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी। और पेरेंट्स ने लाइक जितना उनसे हो सकता था, दे हैव डन दे ऑल। सो माई बॉन्ड विथ माई मॉम एंड विथ माई डैड इज़ अमेजिंग। एंड मतलब छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं बोल लूँ कि मैं रोज़ लेट होती थी स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, तो पापा बेचारे मेरे को ऐसे सुबह सुबह गाड़ी में Oh उठ के my मेरे को God, ड्रॉप करके जाते थे। same. I know. Yeah. एंड फिर मम्मी के साथ भी ऐसा था कि सुबह का खाना, दोपहर का खाना जब मैं स्कूल से आती थी तो हम साथ में खाते थे, फिर मम्मी मेरे को लाइक चिपका के सुला देती थी। तो ये चीज़ें जो है, मतलब मैं आई गेस 10th या 12th तक मम्मी के साथ ही सोई हूँ। तो फॉर मी शी इज़ अ वेरी कंफर्ट स्पेस फॉर मी। मुझे ये बताओ कि when you grow up with sisters around and when you grow up with so many girls and women around, वो किस तरह आपकी mindset को या आपकी psyche को किस तरह वो shape करता है? सिंस आई हैड लाइक नो मेल पर्सन, क्योंकि पापा की जो पोस्टिंग होती थी उस टाइम पे वो बाहर रहती थी। अच्छा, सो इट वॉज ऑलवेज लाइक दादी, मम्मी, माई सिस्टर्स, स्कूल में भी इट इज़ ऑल all गर्ल्स। girls, हाँ. सो वो जो सिर्फ गर्ल्स गर्ल्स का, और दोस्तों में भी जो हम कॉलोनी में घूमते थे वो मोस्टली गर्ल्स थी, एक दो ही लाइक लड़के होते थे। हाँ. तो इन दैट इन्वायरमेंट जब मुझे उसके बाद जब कॉलेज जाना पड़ा या कॉलेज से मुंबई आना पड़ा, तो वो मुझे लाइक टू मीट अ गाय,
टू टॉक टू अ गाय, वो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करता था. मतलब आई यूज्ड टू बी लाइक वेरी नर्वस कि यार मैं क्या बात करूँगी, कैसे बात करूँगी. आई एम वेरी कंफर्टेबल विद गर्ल्स, बट विद गाइज आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल at that point. हाँ. Now I am okay. Okay. They all are my buddies. हाँ. So I'm very chill. So I think वो जो sensitivity होती है एक जो लड़कियों में, since I've been surrounded with girls, तो वो एक care, मतलब किस दूसरों को सबसे पहले रखना, अपने आप को like सबसे आखिरी में रखना, वो शायद ज़्यादा बढ़ गई है. And also like no one was like very rebel in my house. तो शायद वो भी एक reflect होता है. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.